Welcome back to everyone in Soshana and Anaya vlog. So I hope guys that you all are doing well and जो भी आपकी रिवीजन चल रही होगी that's also going well and I hope कि आप सभी अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे. So first of all the best to you all because it's revision time because exam is too close and इस time पे like not you guys जब मेरा भी exam था तो काफ़ी इट्स टू एंग्शियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि यार कैसे होगा क्या होगा but don't that don't be that much take stress. Just be calm, just be quiet and जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो so just close your eyes and just think for the whole year जो आपने प्रिपेयर किए हैं अपनी नोट्स कैसे कैसे वो टाइम you are just spending with your friends with your family and just remembering that good moments that you have in your life and just think about and it will hardly take your 10 or 5 minutes and after that you will feel happy. So before starting this video I just wanna say that you all are too good because you have come to this step or a moment of life ki you are giving your entrance for the aims and you guys all are talented because if you are able to giving this exam that means you are too good in study that's why you are giving. So you all are too intelligent and too beautiful pretty girls that you all giving. So don't be too stressed during this time जब paper like बहुत ही ज़्यादा close है. So just focus on your study, maintain consistency and always focused on your goal and you will achieve your goal. So before starting this video just make a timetable for yourself, like have a good meal, healthy meal and have a take good and nice sleep. Don't be like पेपर पास में आने वाला है तो आप ज़्यादा मत सो, ऐसा नहीं है. जस्ट टेक अ गुड नैप, अच्छी अच्छी खाना खाओ और जो भी सारी चीज़ें आपने पढ़ाई की है उन सभी को रिवाइज करो डेली and surely you will achieve your goal because you guys all are putting lot of effort to achieve this dream and you have come to this step or moment of life jab very few days are left and you will give your exam. So just focus on your consistency and be happy, be motivated, don't be stressed, just enjoy this moment of life. जैसे we enjoy the happy moment in life there are a lot of times जब we face these kind of कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है. So ऐसा नहीं है, it's general phenomena कि before exam or before anything which is most important for you we all, not you guys, all of us like जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है so we all get bit of stress and this stress is not just for your कि आप demotivate हो जाओ. This is for our like the way of success or the path of success that we are stepping into the new session of life. So this is basic or this is the normal. Don't get or don't indulge in too much of stress activities. Just be focused on your study and you will achieve your goal. So let's start with the tips for the CBT based examination. Like one of girl asked in the comment कि like थोड़ा सा बता दो थोड़ा सा tips कि like कैसे करना है. So as you all know जो CBT based computer based test होता है that is very easy. बट काफ़ी लोग जिनको नहीं आता उन्हें लगता होगा कि यार क्या क्या करना होता है. तो CBT बेस एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं करना होता है. सो बहुत ही बेसिक सा होता है कि आपको जनरली अगर जैसे कई लोगों को जिनको नहीं भी चलाना आता है सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं तो वो आपको लाइक बता देंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो जो CBT बेस एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा जो 30 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री, 30 मार्क्स का फिज़िक्स, 30 मार्क्स का बायोलॉजी एंड 10 मार्क्स का होता है हमारा GK. सो जीके के लिए कि मैं बता दूं कि एज सच कोई लाइक ज़्यादा हार्ड वाला जीके नहीं आता. आप जो नॉर्मल जो इस ईयर का है 2024 का उसका करंट अफेयर्स देख लेना एंड जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग, लॉजिकल बेस्ड, पजल टाइप ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. सो दीज आर वेरी इजी टू स्कोर.
एंड फॉर जो भी आपने पढ़ाया है, उनके नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज़ करो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। एंड अभी के टाइम पे कोई भी अलग सी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए नहीं लेनी है, जो भी आपने पढ़ा है उन्हीं से पढ़ो। सो मैं ट्रैक से बाहर चली गई ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द CBT बेस एग्जामिनेशन। सो जो CBT बेस एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड जब ऑप्शंस होते हैं सो वी गेट कन्फ्यूज, हमें लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो काफ़ी लोगों को ऑप्शंस वाले अच्छे नहीं लगते होंगे, लाइक जिनका थ्योरी में ज़्यादा अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है, अच्छा होता है। MCQ वाला भी एक ईजली हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स। सो जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है देयर इज़ अ पेज दैट विल गिव यू इंस्ट्रक्शन इन योर कंप्यूटर कि ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है या देखनी है। सो जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है तो जो इंस्ट्रक्शन वाला जब आपका पेज ओपन होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको अच्छी तरीके से रीड करो। अगर आपको रीड करके भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क द इंस्ट्रक्टर जो कि वहीं पे होगा। सो डोंट बी लाइक कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। सो चलो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम के बारे में। बेसिक थिंग्स क्या क्या, मतलब कैसे देना है एग्ज़ाम। सो जैसे कि हमारा जो CBT बेस है उसमें ऑप्शन होता है ABCD। सो अब आपको इसमें से चूज़ करना है ओनली वन। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि वी आर गेट कन्फ्यूज कि कौन सा ऑप्शन होगा। सो स्टेप नंबर 1 की जो भी आपको, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और जो भी ऑप्शन आपको बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो होता है ऐसा है जो बिल्कुल ही अलग सा ही होता है, उसको आपको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, उसको हटा देना है। अब बचे हैं आपके पास 3 ऑप्शन। सो पहला ये है कि आपको एलिमिनेट कर देना है और रिमूव कर देना है जो बिल्कुल ही लग रहा है आपको बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान से लाइक क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉर फ्यू मिनट थिंक। अगर आपको वो चीज़ याद आ जाती है तो दैट्स वेल इनफ। नहीं तो क्या करना है कि जो भी ऑप्शन आपके पास लेफ्ट है उसमें से देखो कि कौन सा आंसर उसके लिए फिट बैठेगा। लाइक थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है ना कि कौन सा आंसर इसके लिए करेक्ट रहेगा। सो उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट में चले जाओ, देन बाद में कर लेना। एंड थर्ड मोर थिंग इज़ कि आपकी जो भी गट फीलिंग होती है, समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि यार यही आंसर होगा। सो जस्ट लिसन दैट गट फीलिंग, जो अगर आपको लग रहा है कि यही आंसर होगा, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम लाइक फॉर मी, लाइक जब ऐसा होता है ना कि यार लग रहा है मुझे ये आंसर होगा लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता और हम दूसरा लगा देते हैं। लेकिन जब वी वेंट बैक टू द होम व्हेन वी चेक द आंसर तो वही होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग लग रहा है उसको हटा ही दो कि ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ये है कि फिट करके देखो कि कौन सा आंसर इसके लिए सूटेबल मैच कर रहा है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो ईजिली हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो लॉजिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं जो NCERT के अंदर से जो होते हैं, वैसे तो ये वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रिक थोड़ा सा अपना लेना अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ जाए तो, कि आप उस चीज़ को फिट करके देखना कि कौन सी चीज़ इसके लिए फिट हो रही है। एंड थर्ड थिंग, लिसन फॉर योर गट फीलिंग, कि अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर है तो जस्ट स्टिक ऑन दैट एंड उसको करेक्ट करो एंड जस्ट गिव योर पेपर एंड दैट्स इट। यही है कि एंड आप जब भी पेपर देने जा रहे हो सो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल फील फ्री एंड डोंट बी टू इन एंग्शियस मूड, जस्ट बी हैप्पी। एंड बट ऐसा नहीं होता, जब हम पेपर देने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ ही जाता है। सो इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम बेस्ट एंड यू हैव टू अचीव एंड सिक्योर अ गुड रैंक फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड एज सच मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया है टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, बस यही है
कि जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज आता है उसमें वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म्ड होती है कि कौन सा, जैसे समटाइम्स होता है कि हमें ये आंसर श्योर नहीं होता है तो हम उस चीज़ को स्किप करके, या प्रीव्यू मतलब कि हम दोबारा उसको रिव्यू करेंगे, ऐसे वाले ऑप्शंस भी होते हैं। तो वो हर एक जगह का जो कंप्यूटर का लाइक मोड होता है उसके अकॉर्डिंग होता है इंस्ट्रक्शन वाला। तो वो डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं एंड टाइम टू टाइम वो चेंज भी होता है। सो जो भी इंस्ट्रक्शन वाला पेज जैसे ही खुलेगा आपको उसको अच्छे से देखना है एंड उसके बाद ही पेपर स्टार्ट करना है। एंड अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता तो इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे होंगे आप उनसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपने कभी कंप्यूटर सीखा होगा तो जो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन मतलब पेपर देने जाते हैं तो लाइक देयर आर लॉट ऑफ रोज। तो उस रोज में भी लाइक जैसे हमारे वाले में 10 कंप्यूटर रखे हुए थे, लेकिन उस रो में सिर्फ 2 लोगों को बैठाया था। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो लाइक हर एक इंडिविजुअल आपके अगल बगल में बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वन रो में ओनली 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही बैठाते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो नीट का एग्ज़ाम होता है वैसे वाला। सो दिस इज़ अबाउट, एंड एनीथिंग यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन दी कमेंट। एंड वन मोर थिंग, जो आप वो मार्क्स वाला पूछते हो ना कि मैं इस कैटेगरी से हूँ तो मुझे कौन से उसमें मिलेगा, सो उसके लिए मैंने बेसिक बेसिक तो बता दिया कि इस रेंज में है तो मिलेगा। लेकिन इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशन कि इंस्टीट्यूशन के पास कितनी सीट है और कितने बच्चे अपीयर होते हैं एंड किस तरीके से रेंज जाता है। तो वो ईच ईयर का अलग अलग होता है। सो डोंट बी जस्ट फोकस ऑन दैट एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, लाइक यू ट्राई टू ऑलवेज गिव 100%। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू गिव 100% तो 80 तो आ ही जाता है अपने आप ही। इट्स लाइक कि आप जब इतना पढ़ते हो तो इट्स कम्स ऑटोमेटिकली। So try to give best, try to give 100% of yourself, be motivated। and like जब भी आप पढ़ते हो रिवाइज करते हो, so just reward yourself also, like after completing the revision and all, have a good meal, go for a trip or go outside with your friends and family members and have a good day and just enjoy this moment and this time बहुत precious है आपके लिए। so don't waste these फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी एंड वन डे यू विल श्योरली अचीव योर गोल। आई होप दिस इज़ क्वाइट अ बिट informative, and that's it for today. I hope you like it. And one more thing for today, I hope you like it. And yeah, thank you so much for watching and have a good day. And yeah, best of luck for your revision strategy. Yeah, bye.